Jai Hind all my dear students. So today we are going to start our new chapter, that is chapter number 3, how do organisms reproduce. Previously we have covered two chapters. First is your life process, second is your control and coordination. So this is our third chapter, that is how do organisms reproduce, right? So first topic is your reproduction. You're right. So why reproduction is so much essential? What is reproduction is all about? We are going to learn in this chapter. So what is reproduction? Reproduction means it is a biological process, right? So it is a biological process to produce an offspring, right? So reproduction means it is a biological process to produce an offspring. Why reproduction is so much essential? Reproduction is essential because it helps in maintaining continuity of the species, right? And it also helps in studying the evolution. That's why reproduction is an important topic, right? So that is the utility of reproduction. So reproduction means it is a biological process to produce an offspring, right? Now further, when we are going to study in detail about the reproduction, it is divided into two parts, right? So first one is your asexual reproduction, right? So reproduction is divided into two parts, asexual reproduction, and second is your sexual reproduction, right? So first one is your asexual reproduction. Asexual reproduction means one parent is involved, right? Asexual reproduction means uniparental. Asexual reproduction means uniparental, uni for one, right? Second is your sexual reproduction. Sexual reproduction means two parents are involved, right? Sometimes people are using that two or more गलत है, ठीक है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जहाँ पर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है. क्लियर? सो again, if we are going to differentiate between them, right? So sometimes the question will come in your exam, differentiate between asexual reproduction and the sexual reproduction. So asexual reproduction means there is only involvement of one parent, right? And in case here of sexual reproduction, two parents are involved, that is sexual reproduction. Asexual reproduction, it includes unicellular species, right? Asexual includes your unicellular species mainly, right? And in case of sexual reproduction, it mainly includes multicellular organisms, right? Multicellular organisms. Asexual reproduction is a fast process. Asexual reproduction is a fast process, while sexual reproduction is a slow process, right? In case of asexual reproduction, variation will not occur, right? In case of asexual reproduction, variation will not occur. Variation का मतलब क्या होता है? Difference in the organisms, right? तो वो हो गया आपका asexual reproduction. Here in case of sexual reproduction, variation will occur, right? Variation का मतलब difference in the organism. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? वेरिएशन होगा. वेरिएशन का मतलब क्या होगा? क्यों होगा वेरिएशन? क्योंकि यहाँ पर टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, राइट? बाई पेरेंटल है, तो दोनों के जीन्स जो है आगे की जनरेशन में जाएंगे, तो डेट्स वाई वेरिएशन विल अकर, राइट? आई होप द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज क्लियर to each and everyone, right? So further we will study in detail methods, what are the different types of asexual reproduction. So the asexual reproduction further divided into different categories. First one is your binary fission, right? Binary fission is of two types, binary fission and the multiple fission. Then fragmentation, right? Fragmentation we will study. Then regeneration, how the process of regeneration will carried out. After that is your budding, right? So these are the different methods of asexual reproduction. And in case of plants, how it will carry out? It will carried out with the help of vegetative propagation, right? So vegetative propagation we will study.
root, stems and leaves, right? So vegetative propagation, we will study in detail. And what are the different methods of vegetative propagation? Natural methods and the artificial methods. Clear? So we are going to discuss in detail. हम ये सारी चीज डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हम ये चैप्टर का ओवरव्यू जान रहे हैं कि भाई इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज हमें कवर करनी है. फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने बताया था बाई पेरेंटल है, ठीक है, बाई पेरेंटल होगा. फिर अब इसमें क्या क्या हमने पढ़ना है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने किस में पढ़ना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट. वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ वी विल स्टडी द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, क्या क्या पार्ट्स फ्लावर में होते हैं. यूनिसेक्सुअल फ्लावर कैसे हैं, बाईसेक्सुअल फ्लावर कौन से होंगे, राइट. देन पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन एंड हाउ द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन विल carried out. Further, we will study about the process of fertilization in case of sexual reproduction in flowering plants. Clear? Then we will study sexual reproduction in human beings. In this topic, we are going to cover two parts. One is your male reproductive system. पहला कौन सा है आपका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो हमें इसमें कवर करना है, राइट. दूसरा कौन सा है यहाँ पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, right? Male reproductive system and the female reproductive system we are going to discuss in detail. And in case of female, we are going to cover menstrual cycle, right? Menstrual cycle in female. Then reproductive health, one of the important topics of this chapter. What is reproductive health, right? So what are मतलब इसमें बताया है कि भाई STDs हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, उससे कैसे वो क्या रोल किस तरीके से वो हार्म कर रही हैं, है ना, किस तरीके से वो हार्म कर रही हैं. मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कौन कौन से मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, बर्थ कंट्रोल के कौन कौन से मेथड्स हैं, राइट. फिर उसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे वेसेक्टोमी क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी क्या होती है. सो ऑल दिस वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर, राइट. तो अभी तक हमने ये देखा कि भाई रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है. रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा? इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग. व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल? रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज. इट हेल्प्स इन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, राइट. क्लियर? चलिए. देन Do organisms create exact copies of themselves, right? पहला ही है, NCERT में पूछ रखा है इन्होंने कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर सकते हैं, ठीक है. Do organisms create exact copies of themselves? Organisms look similar. जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या होंगे? एक समान दिखते हैं बिकॉज देयर बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर. जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सिमिलर दिखाई देंगे. क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि उनका बॉडी का डिजाइन है वो भी सिमिलर ही होगा, ठीक है. इफ बॉडी डिजाइंस आर टू बी सिमिलर, अगर बॉडी डिजाइन सिमिलर है, द ब्लूप्रिंट फॉर दीज डिजाइंस शुड बी सिमिलर. तो ब्लूप्रिंट भी कैसा होगा इनका? सिमिलर ही हमें देखने को मिलेगा, राइट. समझेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को, क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर. रिप्रोडक्शन and its most basic level will involve making copies of the blueprint of body design. तो रिप्रोडक्शन है जो कि किस में मदद करेगा? वो ब्लूप्रिंट को तैयार करवाने में मदद कर रहा है, ठीक है ना. ब्लूप्रिंट को तैयार करवाने में मदद कर रहा है. किस तरीके से कर रहा है ये हम जानेंगे, ठीक है, ये हम जानेंगे, ठीक. सो हेयर यू कैन सी दिस द रफ डायग्राम. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज दिस. दिस द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल. सेल भी हम पढ़ते हैं यहाँ पर. कौन प्रोकैरियोटिक सेल होती है और दूसरी कौन सी होती है? यूकैरियोटिक सेल. सो हेयर यू विल सी, हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो ह्यूमन बींग्स की कौन सी होगी? अब यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है. यूकैरियोटिक सेल है. यूकैरियोटिक सेल जो होगी उसके अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस, हमने न्यूक्लियस मान लिया, ठीक है. न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है आपका? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट. सो दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्रोमोसोम्स, राइट. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्रोमोसोम्स. क्रोमा फॉर द कलर एंड सोम मीन्स फॉर द बॉडी, राइट. क्रोमा फॉर द कलर एंड सोम मीन्स फॉर द बॉडी. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट. सो क्रोमोसोम्स, राइट. क्रोमोसोम्स क्या होंगे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे. और क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है? वो
न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। जो सेल का जो न्यूक्लियस है वहां पर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे और उसके पास क्या होगा, क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर, क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। जो क्रोमोसोम्स है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, क्रोमोसोम्स है न्यूक्लियस के अंदर, उसके पास क्या है यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, इंफॉर्मेशन होगी इनहेरिटेंस के लिए, ठीक। फिर दैट विल पास, जो कहाँ जा रही है, वो पेरेंट से दूसरी जनरेशन में जा रही है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है, किस फॉर्म में, वो डीएनए की फॉर्म में, ठीक। तो हमने क्या देखा है यहाँ पर कि भाई ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम्स में क्या है, डीएनए, ठीक है। क्रोमोसोम्स किसका बना होगा, डीएनए, ठीक। और इसके अलावा क्या होगा, इसमें हम देखेंगे जो ये है आपका हिस्टोन प्रोटीन, इसके अलावा प्रोटीन से प्रेजेंट होती है, उस प्रोटीन को क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। सो जो डीएनए है, ठीक है, जो डीएनए है, ठीक, ये डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर है, डीएनए इज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट। सो डीएनए इज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और ये जो जगह है यहाँ पर डीएनए के ऊपर क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, जो बता रहा हूँ उसको प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। तो डीएनए है, डीएनए के पास क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी, और वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होगी, वो कोडेड फॉर्म में होगी, किस फॉर्म में होगी, वो कोडेड फॉर्म में होगी। सो डीएनए इट विल कैरी द इंफॉर्मेशन इन द कोडेड फॉर्म, देन इट विल गोज टू द आरएनए, जो इंफॉर्मेशन होगा उसको कॉपी कौन करेगा, आरएनए कॉपी करेगा। डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज योर ribonucleic acid, right, and further the information will go to the protein, right। so कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, वो डीएनए से आ रही है, ठीक है। डीएनए के पास कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, फर्दर कहाँ गई, वो आरएनए में गई, ठीक है। आरएनए से फिर कहाँ गई, वो प्रोटीन में गई। क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, राइट। अभी हमने देखा था जो क्रोमोसोम्स है न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर, उसके पास क्या है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट है, वो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, और वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, वो एक जनरेशन से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, किस फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में। डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन, राइट। सो डीएनए की इंफॉर्मेशन सोर्स से क्या बना रहा है, वो प्रोटीन को बना रहा है, ठीक है, प्रोटीन को बना रहा है। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड, अगर उस इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज होता है, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड, उससे क्या होगा, डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगी, ठीक। अगर मान लो यहाँ पर कुछ चेंज हुआ, ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ चेंज हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी कुछ चेंज होगा, और अगर यहाँ चेंज होगा तो प्रोटीन भी फिर क्या होगा, प्रोटीन भी क्या होगा, इसके अंदर भी हमें चेंज देखने को मिलेगा। क्लियर। सो इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड, डिफरेंट प्रोटीन्स बनेगी, डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइन, और उससे क्या होगा, जो बॉडी डिजाइन होगा, जो ब्लूप्रिंट होगा, वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, राइट। सो जो डीएनए हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के बारे में हायर क्लासेस में, तो डीएनए का स्ट्रक्चर हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है, राइट। और इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 99.9% डीएनए क्या होता है, सबका सिमिलर होता है, राइट। पूरे वर्ल्ड में 99.9% डीएनए क्या होता है, सबका सिमिलर होता है, लेकिन जो बचा हुआ है 0.1%, ठीक है, 0.01% जितना भी बचा हुआ है वो, उसकी वजह से क्या आता है, वेरिएशन आता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, वो वेरिएशन आता है, और जिसकी वजह से हम सब कैसे हैं, डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं, राइट। तो क्या बताया मैंने आपको, जो 99% डीएनए है पूरे वर्ल्ड में, वो कैसा है, सबका सेम है, और वेरिएशन जो आ रहा है वो बचे हुए पार्ट से आ रहा है, राइट। तो ये भी हम देखते हैं, तो डीएनए, ठीक है, डीएनए क्लियर। बाकी अगर इसका डिटेल स्ट्रक्चर अगर किसी को पढ़ना है तो उसके लिए मैं अलग से और डाल दूँ उसके लिए वीडियो, ठीक है। तो ये हमने देखा कि भाई किस तरीके से ये चेंज हो रहा है। फिर
ए बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ ए डीएनए कॉपी। तो बेसिक इवेंट क्या है यहाँ पर, ठीक है, बेसिक इवेंट क्या है यहाँ पर, ए बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, डीएनए कॉपी का बनना, ठीक है, डीएनए कॉपीज तैयार हो रही हैं। तो डीएनए से डीएनए का बनना डीएनए कॉपिंग कहते हैं। मोर मतलब उसको और सही तरीके से क्या कहते हैं हम लोग, डीएनए से डीएनए के बनने को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, राइट। तो कहाँ पर हो रहा होगा, सेल के अंदर हो रहा होगा। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज, सेल्स क्या करेंगी, केमिकल रिएक्शंस को यूज करेंगी, उसकी कॉपीज तैयार करेंगी ऑफ देयर डीएनए, राइट। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए, दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, 2 कॉपीज डीएनए क्या हो जाएगी, वो तैयार हो जाएगी, राइट। इन ए रिप्रोड्यूसिंग सेल, किसके अंदर, रिप्रोड्यूसिंग सेल के अंदर, एंड दे वुड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और फिर वो क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे, राइट। तो ये क्या है यहाँ पर, जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, सेल के अंदर ये क्या है आपका, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स है, और क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, डीएनए, ठीक है। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स हैं, और जीन्स किसके बने होंगे, डीएनए के बने होंगे, है ना। जीन्स में क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा, क्लियर। तो एक सेल जो होती है वो डिवाइड करती है, ये हमें प्रीवियस क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भाई एक सेल है, एक सेल डिवाइड करती है, डिवाइड करने के बाद क्या बना देती है, वो 2 डॉटर सेल्स को बना देती है। ए सेल विल डिवाइड एंड इट विल गिव राइज टू द 2 डॉटर सेल्स, राइट। बिफोर डिवीजन, डिवीजन से पहले क्या होगा, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, राइट, बट द अमाउंट ऑफ द डीएनए विल डबल, राइट। जो डीएनए का अमाउंट है, जो डीएनए का कंटेंट है, वो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, राइट। सो दैट इट विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली टू द 2 डॉटर सेल्स, ताकि वो 2 डॉटर सेल्स के अंदर क्या हो जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्लियर। सो डीएनए क्या है यहाँ पर, डीएनए का कंटेंट यहाँ पर डबल हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर, जो क्रोमोसोम्स होंगे वो सेम रहेंगे, राइट। फर्दर इट विल डिस्ट्रीब्यूट इनटू द 2 डॉटर सेल्स, ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए 2 डॉटर सेल्स के अंदर, राइट। डीएनए कॉपिंग इज accompanied by the creation of an additional cellular apparatus, and then the DNA copies separate each with its own cellular apparatus, right। So क्या लिखा है यहाँ पे, तो DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus, additional apparatus की जरूरत पड़ेगी, and then the DNA copies separate each other, जो डीएनए कॉपीज होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट ईच अदर इट्स ओन सेलुलर एपरेटस, ओन सेलुलर एपरेटस से क्या हो जाएंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे। इवेंचुअली ए सेल डिवाइड्स, एक सेल डिवाइड करेगी और उससे क्या बनेंगी, 2 सेल्स बन जाएंगे, इट विल गिव राइज टू द 2 सेल्स। ये हमने देखा, ठीक है, ये हमने डायग्राम में देखा, क्लियर हुआ कि भाई डीएनए कॉपिंग क्यों एसेंशियल है, ठीक है, डीएनए कॉपिंग क्यों जरूरी है। दीज 2 सेल्स आर ऑफ कोर्स सिमिलर, बट आर दे लाइकली टू बी ऑब्सोल्युटली आइडेंटिकल, ये जो 2 सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या होंगी, वो सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है, लेकिन बट आर दे लाइकली टू बी ऑब्सोल्युटली आइडेंटिकल, क्या वो हूबहू एक जैसी होंगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शंस इन्वॉल्व अकर, वो किस पे डिपेंड हो रहा होगा, वो डीएनए कॉपिंग किस तरीके से हो रहा होगा, ठीक है, डीएनए कॉपिंग का जो प्रोसेस है वो कितना एक्यूरेटली चल रहा होगा। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज ऑब्सोल्युटली रिलायबल, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन क्या है, ऑब्सोल्युटली रिलायबल नहीं है, क्लियर। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ द डीएनए विल हैव सम वेरिएशंस ईच टाइम, यानी कि क्या लिखा है उन्होंने कि भाई ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब भी प्रोसेस होगा कॉपिंग का, कॉपिंग किसका, डीएनए का, तो हर बार क्या होंगे, हमें कुछ वेरिएशंस क्या होंगे, देखने को मिलेंगे जब भी डीएनए कॉपिंग होगा। डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर, ठीक है, डीएनए कॉपीज जो जनरेट होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा, बट
मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल, लेकिन वो ओरिजिनल के आइडेंटिकल नहीं होगा, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, उसमें माइनर वेरिएशंस आ रहे हैं. सम ऑफ दीज वेरिएशंस माइट बी सो ड्रास्टिक, कुछ वेरिएशंस क्या होंगे, ज़्यादा ही कैसे होंगे, वो ड्रास्टिक होंगे. ठीक है. सम ऑफ दीज वेरिएशंस माइट बी सो ड्रास्टिक दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद इन द सेलुलर एपरेटस. जो डीएनए कॉपिंग होगा वो नहीं कर पाएगा, सेलुलर एपरेटस के अंदर नहीं काम कर पाएगा. क्लियर. तो यानी कि अगर वेरिएशन ज़्यादा है जिसकी वजह से क्या होगा, मतलब क्या होगा, जो डीएनए कॉपिंग है, जो नया डीएनए कॉपी है, वो सेलुलर एपरेटस के अंदर नहीं वर्क कर पाएगा. राइट. सच ए न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई. ठीक है. वो क्या हो जाएगी, फिर वो सेल डाई हो जाएगी. इसका मतलब क्या है, ये जो हम पढ़ रहे हैं डीएनए से आरएनए से प्रोटीन, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है सेल के अंदर जो चल रहा है ना. ऑन द अदर हैंड, ठीक है, ऑन द अदर हैंड देयर कुड बी स्टिल बी मैनी अदर वेरिएशंस इन द डीएनए कॉपीज दैट वुड नॉट लीड टू सच ए ड्रास्टिक आउटकम. यानी कि अगर कुछ माइनर वेरिएशंस होंगे तो उससे कोई ड्रास्टिक आउटकम नहीं होगा. दस द सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर टू, जो सर्वाइविंग सेल्स हैं वो क्या होंगी, सिमिलर हो सकती हैं. राइट. दे आर सिमिलर टू बट सबचुअली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है. वो क्या होंगी, एक दूसरे से क्या होंगी, वो डिफर हो सकती हैं. राइट. इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर इवोल्यूशन. क्या लिखा है यहाँ पर, जो इनबिल्ट टेंडेंसी है यहाँ पर किसकी, वेरिएशन की, वो क्या बता रही है, वो यहाँ पर रिप्रोडक्शन के टाइम में वो क्या किस में हेल्प कर रही है, वो इवोल्यूशन को भी स्टडी करने में मदद कर रही है. तो हमने देखा कि भाई यहाँ पर डीएनए कॉपिंग है, डीएनए कॉपिंग अगर माइनर होगा तो कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होंगे, है ना. और अगर ज़्यादा ही उसमें चेंज आ रहा है तो वो क्या होगी, सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी. और वेरिएशन एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है किसके लिए, इवोल्यूशन की स्टडी करने के लिए. राइट. सो कब आ रहा है ये, रिप्रोडक्शन के टाइम पर आ रहा है. आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन.